Hello, dear students. My name is Ramchan. I am Assistant Professor in Physics. In this lecture, I will teach Physics first year. Our today's topic is taken from chapter number 2, Scalars and Vectors, and we will discuss on multiplication of two vectors. In the first part of this lecture, we will discuss on scalar product only. There are two types of vector multiplication. One is known as dot product and another is known as cross product. Because when we multiply two vectors, then resultant vector may or may not contain direction. If we only get magnitude or single number in result, then we call this product as scalar or dot product. If we get both direction and magnitude, then we call the product as a vector or cross product. In order to differentiate these two products from each other, we use a dot sign as a multiplication sign in scalar product. That is why we call this product as a dot product. And because this resultant product is scalar, so we also call this product as a scalar product. Similarly, in cross product, we use cross as a multiplication sign, therefore we call this product as a cross product. And also because we get vector in results, so we also call this product as a vector product. In this first part, we will only discuss about the scalar product and then we solve some numerical related to the scalar product. Let us first discuss mathematical description of scalar product. Suppose we have two vectors A and B making some angle theta between them. Then dot product of vector A and vector B can be calculated mathematically by this equation. Vector A dot vector B equal to magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B multiplied by cos theta. So where theta is the angle between vector A and B, and A magnitude can be calculated by Pythagoras theorem and magnitude of B can also be calculated by Pythagoras theorem. And here vector A and B are the vector in the vector form. So left sides there are two vectors multiplied together by dot sign, while the right side of this equation we have two scalar multiplied together. Please note that in order to multiply two vectors, it makes sense to multiply their lengths together only, but only when they point in the same direction. So we make one point in the same direction as the other by multiplying by cos theta. यानी कि दो वेक्टर अगर आप बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होंगे मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, then we can multiply vector A by B, otherwise we cannot multiply. अगर दूसरा वेक्टर B उसके साथ एंगल बना रहा है और वो इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं है वेक्टर A के, तो फिर हम B का वो प्रोजेक्शन A की तरफ लेंगे जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, जो हम उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तब भी हम वो पोर्शन ही सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में होता है. तो आइए हम इसको जो है कुछ एनिमेशन के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं. सपोज़ करें ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये इसकी लेंथ है और इस वेक्टर को हम सपोज़ वेक्टर ए कहते हैं. अब एक हम दूसरा वेक्टर लेते हैं वेक्टर बी, दोनों के टेल आपस में मिले हुए हैं. अब ये वेक्टर बी इसके साथ एंगल बना रहा है, तो अब ये वेक्टर जब बिल्कुल इसके पैरेलल होगा मीन्स इसके एंगल इसकी ज़ीरो होगी, तब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ये कोई एंगल बना रहा है तो फिर हम इसका वही पोर्शन लेंगे, जैसे कि ये नीचे इसका प्रोजेक्शन है. अब 90 डिग्री पे इसका प्रोजेक्शन ज़ीरो हो जाता है, तो अगर ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. आइए हम इसको समझते हैं कि ये प्रोजेक्शन क्या होता है. सपोज़ कर रहे हैं ये हमारे पास एक प्लेन है जो एंगल बना रहा है फर्श के साथ, नीचे ये फ्लोर है और ऊपर हम एक लैंप जला देते हैं. अब इसका जो साया नीचे गिरता है, देखें ये एंगल के साथ किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है. बिल्कुल 90 डिग्री पे साया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम साया होता है. तो ये जो है इसको हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये साया ही वो प्रोजेक्शन है
जो बिल्कुल पहले वेक्टर के पैरेलल होता है। तो अब इसको, क्योंकि अब दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो अब हम इसको, इसके दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसीलिए जो है, ये अगर साया ज़ीरो हो जाएगा, मींस 90 डिग्री पे कोई साया नहीं होगा, तो प्रोजेक्शन ज़ीरो होगी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। और मैक्सिमम कब होता है? जब इसके बीच में एंगल ज़ीरो होती है। तो अब मैं इस प्रोजेक्शन को ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें ये वेक्टर ए है जो एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसका प्रोजेक्शन जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जो हम उसको ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल के साथ किस तरह चेंज होता है देखें। तो ये ए कॉस थीटा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसको, अगर ये वेक्टर ए जो है जो चेंज हो रहा है एंगल थीटा के साथ, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू भी चेंज होती है। तो लेट अस सपोज ये वेक्टर ए जो है 0 से 360 डिग्री के बीच में चेंज हो रहा है। तो ए की कॉस थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस चेंज होती रहती है। तो ये जो प्रोजेक्शन जो होता है ए कॉस थीटा, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये वो प्रोजेक्शन है जो एक्चुअल वेक्टर ए के साथ पैरेलल होता है और उसके साथ मल्टीप्लाई होकर डॉट प्रोडक्ट बनाता है। आइए हम देखते हैं ये जो प्रोजेक्शन है इसका मैग्नीट्यूड किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे हम एंगल चेंज करते हैं बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। और दूसरा, अगर हम बी का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो भी बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड चेंज करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सब सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एंगल और बी का खुद का मैग्नीट्यूड। और क्योंकि बी कॉस थीटा और ए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट इज़ प्योर नंबर, इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो सपोज करते हैं कि वर्क डन है, वर्क डन इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो एक नंबर है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि वो डॉट प्रोडक्ट किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक एंगल पे, ज़ीरो एंगल पे मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होता है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर बी का मैग्नीट्यूड हम चेंज करेंगे तो भी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और दूसरा ए का मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर हम बी का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो कर दें तो भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। या इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम 90 कर दें तो भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और 0 डिग्री पे वो मैक्सिमम रहती है। तो यानी ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। तो ये जो है प्योर नंबर है, जस्ट इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अब ये देखें, ये इक्वेशन जो है डॉट प्रोडक्ट की ए डॉट बी, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये वेक्टर फॉर्म में है और राइट साइड पे जो है ये स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो राइट लेफ़्ट साइड पे जो देखें वेक्टर ए और बी, अगर टू डायमेंशन है तो वो उसका एक्स और वाई होगा, आई जे के उसके जो है यूनिट वेक्टर है। अगर 3 डायमेंशन है तो हम इसका जेड कंपोनेंट भी लेंगे, जैसे कि के इसका यूनिट वेक्टर। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इसके पैरेलल कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मींस आई टू आई, जे टू जे और के टू के। अगर आई टू आई को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके बीच में एंगल ज़ीरो है, तो मतलब ये मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए हम जो आई डॉट आई की वैल्यू जो है वन होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू वन होती है। इसी तरह जे डॉट जे की वैल्यू वन होगी, के डॉट के की वैल्यू भी वन होगी। लेकिन आई डॉट जे को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से कि 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और ज़ीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ। तो इसका मतलब होगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू वन होगी, जबकि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, मीन्स डिफरेंट वेक्टर जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। So let us sum up today's lecture.
तो आज हमने स्केलर प्रोडक्ट में ये पढ़ा था, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b can be constructed by taking the component of one vector in the direction of other and multiplying it times the magnitude of other vector. Mathematically, a dot b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b, cos theta. Scalar product is also called inner or direct product. Magnitude of vector a and b can be calculated by using Pythagoras theorem. Dot product of unit vector always yield 0 or 1. The product of similar unit vector is 1 while that of different unit vector is 0. Vector can be multiplied only if their tails meet. Angle between any two vector can be calculated by their dot products. Work done is an example of dot product. तो आज इतना ही। अब हम जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट में, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे वो सारा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में होगा, और फिर उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे।